आज का जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है ये डिराइव करने के लिए भी आ जाती हैं, ग्राफ्स के बेस्ड इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू टेक टुडे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, पहले हम करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए A has been converted into product. पहले सब देखेंगे, लिखेंगे नहीं। Rate of the reaction is equal to K A raised to the power 0. If I plot a graph here between the rate of the reaction and between the concentration, and if you get a graph, a straight line like this, it is representing the zero order reaction because you see the rate is independent of the concentration of the reactant. अब देखिए रेट क्या होता है, that is minus dA by dt, that is decrease in the concentration of A, which is a reactant, by the time taken to decrease its concentration. This is K, therefore minus dA is equal to K into dt. अब इस चीज को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। So you know that it will be इसको और ढंग से करना है तो इसको माइनस जो है वो इधर ले आते हैं। लेट्स ब्रिंग द माइनस साइन हियर। तो इट इज इंटीग्रल ऑफ डी ए, दिस इज माइनस के एंड इंटीग्रल ऑफ टी, राइट। Integral and differential, they cancel each other. It is equal to minus kt plus c. C is your constant. अब देखिए जब टाइम जो है that is equal to 0, तो A जो है that is equal to A naught, and A naught refers to the initial concentration. जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, जब टाइम 0 है, तो उस टाइम पे A कितना होगा, that is the initial concentration. अब क्या करेंगे, substitute the above values in equation 1, above values in equation 1. Therefore C is equal to A naught, therefore A is equal to minus KT plus A naught. ठीक है, अब इसको आगे लेके आ रहे हैं। इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख रही हूँ। ए आप लोग नहीं लिखेंगे इस इक्वेशन को दोबारा से, दैट इज माइनस KT, it is A is equal to minus KT plus A naught, and KT is equal to A naught minus A. Therefore, K is equal to A naught minus A by T. This is your second equation. If you get a graph like this, okay, that is the concentration of the reactants. I'm writing like this. If the concentration of reactants are plotted against the time and graph is like this, okay, the graph is like this, it means it is a first order reaction. अब यहाँ पे ये ग्राफ से क्या हो रहा है कि concentration of reactants are decreasing with the passage of time, are decreasing with passage of time. ठीक है, ये ग्राफ से हमें ये इंडिकेट हो रहा है। दोबारा से देखेंगे एक बार दोबारा से, बिफोर आई कम टू द हाफ लाइफ पीरियड। A was converted into product because it is a zero order reaction, so rate was independent of the concentration of A. ठीक है, it is A raised to the power 0. तो minus dA by dt is equal to K, तो dA is equal to minus K dt. हम लोगों ने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल, दे टू कैंसिल ईच अदर, तो A is equal to minus KT plus C, where C is your integration constant. जब टाइम बच्चे आपका 0 है तो उस टाइम पे A जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। इसका मतलब C की कितनी वैल्यू आ गई, A नॉट की वैल्यू। हमने यहाँ पे C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसके बाद हमने यहाँ से K को कैलकुलेट कर लिया। Now we'll be talking about a new thing, that is a half life period. अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, इट इज द टाइम
it is a time in which half of the reactant is consumed, ठीक है, और half of the reaction is completed. ठीक है, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो अगर T जो है वो T1/2 हो चुका है तो A की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो A0/2 हो चुकी है, इनिशियल के आधी हो चुकी है. नाउ वी नो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दोबारा से जो पीछे मैंने इक्वेशन निकाली थी. वी नो दैट K इज इक्वल टू A0 - A/T. नाउ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, T is equal to T1/2 and concentration of A as A0/2. Therefore, K is equal to A0 minus A0/2 and this is T1/2. Therefore, T1/2 is equal to A0/2K. So if you are given a graph like this, the graph is plotted between T1/2 and between the concentration, you see they are directly proportional to each other. अब ये ग्राफ, ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको ये ग्राफ दिया होता है और आपसे क्या जाता है, डिपिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो यू मस्ट नो दैट द हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो आप बोलेंगे ये है जी आपका ग्राफ. ठीक है, एक तो इस चीज को इस तरह से करें और उसके बाद ग्राफ जो है वो इस तरह से भी आ जाता है. दिस वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन मैनी मैनी इयर्स बैक और उन्होंने ग्राफ बना के पूछा हुआ था कि व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो क्योंकि यहाँ पे रेट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, सो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. पहले इतना सारे कॉपी कर. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट integrated rate equation. This is very very important. Integrated rate equation for first order reaction. देखेंगे नहीं, first order reaction. ठीक है, अब ध्यान से देखना. मेरे पास एक reactant था. I had a reactant A that has been changed into products. ठीक है, अब क्या हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का था तो इट इज K(A)⁻1. अगर तुम्हें ग्राफ, मैं दोनों कंपेयर करके बता रही हूँ, अगर तुम्हें ग्राफ इस तरह से आ रहा है that is between the rate and between the concentration and the graph is plotted like this, it means it is a first order graph. क्योंकि zero order में आप देखिए the rate was independent of the concentration. If you get a graph like this, it is zero order reaction. तो rate और concentration के बीच में या तो ये ग्राफ आता है या फिर ये ग्राफ आता है और आपसे कहा जाता है कि identify the order of the reaction and derive the integrated equation for the order that you have predicted. तो जब order गलत डिपिक्ट हो गया है तो उस केस में क्या होता है, आपका जो डेरिवेशन है वो भी गलत हो जाती है. आप देखिए, let the initial concentration of A, initial concentration of A is equal to A moles per liter. ठीक है, after time T, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, the concentration will be equal, concentration of A will be A minus X moles per liter. ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A थी और कुछ टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई दैट इज A minus X. तो बेटा हम हमेशा उस चीज के साथ कंसर्न रहते हैं जो हमारे पास बच गया है. तो हमारे पास कुछ टाइम T के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो बच गई है दैट इज इक्वल टू A minus X. ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू Ka-x. ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखी है ये ऑलरेडी डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है. तो dx A-x इज इक्वल टू K इंटू dt. अब इस इक्वेशन को कर दें इंटीग्रेट. ठीक है, integrate the above equation. ठीक है,
अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी dx by a minus x is equal to k into dt. You all know that dx by x is equal to minus x, so this is minus natural log of a minus x and this is equal to kt plus c. ठीक है जी. अब मैं ले रही हूँ when time is equal to 0, जब आपका टाइम 0 है तो उस टाइम पे x भी 0 होगा क्योंकि हमारा कुछ डिक्रीज हुआ ही नहीं है, हमारे पास तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऐसे ही बरकरार रह गई है. तो x is equal to 0, therefore natural log of a minus 0 is equal to k into 0 plus c. therefore c की जो वैल्यू आई नेचुरल लॉग ऑफ a आ गई. तो सब्स्टिट्यूट कर दे. लेट दिस बी इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूट c इन इक्वेशन 1. ठीक है, c को इक्वेशन 1 में डालें. therefore minus natural log of a minus x is equal to kt minus natural log of a. Therefore natural log of a minus natural log of a minus x is equal to kt. So natural log of a by a minus x is equal to kt. So 2.303 log a by a minus x is equal to kt. So this is your integrated rate equation जो numericals में भर भर के लगेगी for the first order reaction. अब देखिए ग्राफ्स किस तरह से आने हैं. I'm going to plot the two graphs here. एक यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ और एक यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ. स्लोप अक्सर पूछी जाती है. If I am going to plot, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं y is equal to mx plus c के साथ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये मेरा यहाँ पे डिफरेंट लिख लेती हूँ, y एंड दिस इज mx. ठीक है, दिस इज चलिए अब अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ a बाय a माइनस x के बीच में और t के बीच में ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और इसकी जो स्लोप रहेगी दैट विल बी इज इक्वल टू k. दैट विल बी इज इक्वल टू k. पर अगर मैं यही ग्राफ लॉग a बाय a माइनस x के बीच में और टाइम के बीच में प्लॉट करूं, and what I'll be getting a straight line, but in this case my slope will be is equal to k by 2 point y is equal to mx. 3.303. ठीक है, so this is how you have to find out the values of the slope and this. उसके बाद आप अगर दूसरा केस ले रही हूँ, if a minus x को आप a ले आए और a को आप a नॉट ले आए, तो उस केस में a नॉट को ढंग से लिख देते हैं, इसको आप a नॉट ले आए तो उस केस में आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें. लेट दिस बी इक्वेशन 2. Substitute in equation 2, so it will be 2.303 log a by a minus x है, a की जगह हम लिखेंगे that is a naught by a and equal to kt. so यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे ग्राफ को, तो ग्राफ वुड गो लाइक दिस. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. तो y एक्सिस पे डालेंगे log a naught by a and it will be time here. The graph would be the straight line like this. ठीक है, तो ये आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के 3 ग्राफ्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आने हैं. Now I'll be talking about the half life period. उसी तरह से जैसे अभी हमने कहा हाफ लाइफ पीरियड की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो हाफ लाइफ पीरियड अगर यहाँ पे कोई स्लोप कह देना ढूंढने के लिए, तो स्लोप विल बी k by 2.303. ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमने क्या करना होता है, t को 1 by let this be equation 3. t को हमने
T1/2 कर देना होता है और A को हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा कर देना होता है, मतलब हमें ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब देखिए आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट नाउ, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, तो 2.303 दिस इज log A0 and this will be A0/2 and this is KT1/2। नेक्स्ट पेज पे लेके आ रही हूँ, इट इज 2.303 A0 और A0 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी, ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2.303 एंड दिस इज A/A0/A, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी log 2 एंड इट विल बी KT1/2, so it will be 2.303 log 2 की वैल्यू 0.3010 by K is equal to T1/2. So if you plot a graph between T1/2 and the concentration, the graph would be like this, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इक्वेशन लिख रही हूँ तो T1/2 is 0.693/K। अब देखिए T1/2 जो है that is independent of the concentration, ठीक है, एक बार दोबारा से, A has been converted into product, rate is equal to K A raised to the power 1 because it is a first order reaction, initial concentration is A moles per liter, कुछ टाइम के बाद A की concentration A minus X moles per liter, dx/dt is equal to K A minus X dx, इसको हम इधर ले आए हैं, इंटीग्रेट कर दिया है हमने, ये आगे इंटीग्रेशन के बाद फिर हमने कहा जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे x है ही नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वली है, हमने सब्स्टिट्यूट किया एंड वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन। नेचुरल लॉग को मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना था तो 2.303 डाल दिया, दो ग्राफ्स प्लॉट कर दिए, एक y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ पे स्लोप विल कम आउट टू बी t, और यहाँ पे x जो है ना दैट इज ये चीज इधर आएगी, y इज ओनली दिस थिंग इज y एंड टाइम के अगेंस्ट द स्लोप विल कम आउट टू बी दिस। अब उसके बाद सिमिलरली आई हैव डन दिस ग्राफ फॉर अ हाफ लाइफ पीरियड, जब टाइम आधा रह गया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी आधी हो गई, हमने इसी इक्वेशन में टाइम को T1/2 डाल दिया और कॉन्सेंट्रेशन को A0/2 डाल दिया, तो यहाँ से आपके पास T1/2 की वैल्यू डिराइव हुई। एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और चीज कराना चाहती हूँ यहाँ पे, अब देखिए जरा, from equation 3 मैं पीछे दिखा के लिख रही हूँ, उसी को लेके आ रही हूँ आगे, इस इक्वेशन को मैं उठा के आगे लेके आ रही हूँ, ठीक है, ये जो मेरी इक्वेशन 3 थी ये रही, ठीक है, दिस वाज माय इक्वेशन 3, अब इसको यहां से रब कर देते हैं। सो कैन आई से दैट log A0/A is equal to KT/2.303 log A0 minus log A is equal to KT/2.303, तो log A जो है इसको मैं log A को मैं इस तरफ ले आई हूं और इसको इस तरफ ले आई हूं, तो दिस विल बी इज इक्वल टू log A0 minus KT/2.303। जब आप ग्राफ बनाएंगे, when you will be plotting a graph between log A and between the time, I am bringing this equation on the next page once again, मैं इस इक्वेशन को आगे लेके आ रही हूँ दोबारा से, just to tell you कि कैसे हुई है ये चीज। ये इक्वेशन मेरी पीछे डिराइव हो गई थी, ठीक है, ये इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड, ये 2 की कोई मायने नहीं है, तो इक्वेशन में देखिए जरा क्या था मेरे पास, y इज इक्वल टू mx एंड c, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो ऑब्वियसली जब आप स्लोप बनाते तो स्लोप इस तरह से बनाते, नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी होती, ये ग्राफ इस तरह से बहुत बार आया हुआ है कि आपसे इस तरह से ये ग्राफ आ जाता है बना हुआ और आपसे कहते हैं स्लोप की वैल्यू निकालिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपिक्ट कीजिए, और अगर कोई कहे
कि इंटरसेप्ट निकाल दो, तो भाई इंटरसेप्ट जो है दैट इज इक्वल टू log a naught. This is how you have to just do. ये देखिए, ये सारे के सारे ग्राफ्स रहेंगे when you are plotting a rate against concentration and it is independent of the concentration. First order reaction, rate against concentration, directly proportional. First order, ये zero order, sorry. Rate against concentration square, a straight line. Second order, rate against concentration cube, that is straight line. A third order reaction. Draw this graph first. Gaseous. अब हम करेंगे integrated rate equation for first order reaction in gaseous phase. जब हम gaseous phase की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब I'll be talking about the pressures instead of the concentration. ठीक है, अब देखिए A in the gaseous phase, it is giving us B in the gaseous phase and C in the gaseous phase. ठीक है, यहाँ पे initial कितना है, that is P naught, और यहाँ पे 0 and 0. ठीक है, after some time you see it is P naught minus P and this is P and this is P. तो total कितना P हो जाएगा, that is P naught minus P plus P plus P. So this will go off. This is P naught plus P. Therefore छोटा वाला P जो है that is PT minus P naught. Now ठीक है, pressure after some time, ठीक है. अब देखिए ये प्रेशर आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे मैं छोटे वाले P की वैल्यू निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ और इसके अंदर छोटे वाले P की वैल्यू डाल रही हूँ, दैट इज P नॉट, ठीक है, माइनस PT प्लस P नॉट, तो दैट विल बी 2P नॉट माइनस PT. मैंने ये PT जो आया है मेरा, इसको इस छोटे वाले P की जगह डाल दिया है. तो दिस इज आई एम गेटिंग प्रेशर आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम रीराइटिंग द इक्वेशन, दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 by T. दिस इज log A by A naught. A is after some time. This is, see this equation. ठीक है, यहाँ पे देखिए A naught by A, it is A naught by A. तो you see the equation, यहाँ पे A naught that is initial pressure कितना था P naught, और कुछ टाइम के बाद कितना प्रेशर हो गया, that is P naught minus PT. So this is an integrated rate equation for the first order when you are talking about the gaseous reactants and the products. लिखेंगे इस आर्टिकल. देखिए for the decomposition of of isopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data is obtained. ठीक है, डेटा में आपको क्या दे रखा है, isopropane and it is getting converted into hexane and nitrogen, और आपको दे रखा है time in seconds and you are given pressure mm of mercury, right? अब देखिए टाइम 0 था तो pressure they have given is 35, 360 seconds, 720 seconds, it is 54 and 63 and you are asked to calculate the rate constant. ठीक है जी, ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है, छोटा सा, कुछ खास इशू नहीं है, कुछ खास नहीं करना. अभी मैंने एक इक्वेशन डिराइव करी है, मैं इसी इक्वेशन को आगे लेके आ रही हूँ. ठीक है, ध्यान से देख लें, सबने लिख ली है P naught by 2P naught minus PT, because I am given the pressure, so obviously I'll be talking about the equation which I have derived in terms of pressure. 2.303 by T, this is log P naught, ठीक है, by 2P naught minus PT.
ठीक है बच्चे, दो रेट कांस्टेंट निकालिए, एक इस टेम्परेचर पे और एक इस टेम्परेचर पे और इस टेम्परेचर पे, दोनों रेट कांस्टेंट का फिर उसके बाद सॉर्ट आउट करके एवरेज निकाल लें। ठीक है, अब आप एट 360 केल्विन में एक एट 360 सेकेंड्स यू फाइंड आउट द वैल्यू, इट इज K इज इक्वल टू 2.303 by 360. P naught is this is your P naught, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, P naught is initial जब टाइम 0 था, तो this will be 35, this is 2 into 35 minus 54, तो K will be 2.303 by 360 and this will be log 35 minus log 16, जब सॉल्व करेंगे तो log 16 आ जाएगा। एक पार्ट आप करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे मिलके, 2.303 by 360, जब आप लॉग देखेंगे, आई होप एवरीबडी नो हाउ टू सी द लॉग, जितने भी डिजिट्स होते हैं उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1.5441 एंड दिस इज 1.2041, तो जब सॉल्व करेंगे 2.175 into 10 raised to the power minus 3 second inverse, तो ये आपकी K की वैल्यू आएगी एट द एट 360 सेकेंड्स। अब आप लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे और फिर हम लोग दोनों वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे तो रेट कांस्टेंट निकालना है। इफ दिस इज माय K1, यहाँ पे मैं सारा K1 लिख देती हूँ, इफ दिस इज माय K1, तो जो रेट कांस्टेंट ओवरऑल आएगा, कांस्टेंट ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल डेटा के लिए, that will be K1 plus K2. So let us find out the K2 here, that is 2.303 by 720. ठीक है, it is log, how much is the initial is 35, so this will be 35 into 2 minus, and this is into this will be 63, so this will be K2 is equal to 2.303 by 720, this is log 35, this is 5 here, this K2 is equal to 2.303 720, log 5 is 0.6990, तो इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, you will be getting an answer। बोलिए जरा मुझे कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आ रहा है? It is coming out to be 2.235 into 10 raised to the power 1 2 minus 3, तो निकाल लें एवरेज, 2.175 plus 2.235 into 10 raised to the power minus 3 divided by 2, तो ये आपका जो है, this will be giving you an answer, it will be approximately 2.2 somewhere। ठीक है जी, is anybody is having any doubt? This will be 2.2 into 10 raised to power minus 3, to be very precise it is 2.205, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी करेंगे न्यूमेरिकल को।